Hello everyone. Welcome once again in the unit number 6, General Principles and Process of Isolation of Elements. In last lecture, means in our lecture number 4, we studied about a Ellingham diagram, and after the completion of this Ellingham diagram, so in the case of Ellingham diagram, why we have to use a Ellingham diagram? So Ellingham diagram is used for the mainly for the pyrometallurgy process, and in this process some metals are easily reduced, means at low temperature, but others are reduced with a difficulty, means reductions occurs at high temperature. So for predict which elements will be the most suitable reducing agent for a given metal oxide and what would be the optimum temperature at which reactions will proceed smoothly, for these basic concepts of thermodynamics we studied about the Ellingham diagrams. And we know that after the completion of Ellingham diagram, now we starts with the application of pyrometallurgy. So these applications means as extractions of ions from its oxide. So first we start to illustrate the utility of Ellingham diagram in pyrometallurgy. Let us discuss the extractions of iron, number 2 copper and zinc from their respective oxide. So in our syllabus, first we start with iron, then copper and then zinc. Okay, so 3 different processes which are used for pyrometallurgy in the case of this Ellingham diagram. So first we starts with extractions of iron from its oxides. तो हमें मालूम है कि the chief ores, और का मैंने आपको मतलब समझाया था कि जहां से मैं इजीली मेटल्स है उसको मैं यहां से ले सकता हूं, ऑक्साइड फॉर्म में होती है ज्यादातर, हेमेटाइट है Fe2O3 या हम उसको बोलेंगे रेड ऑक्साइड ऑफ आयन, लिमोनाइट होती है Fe2O3, ये सेम है लेकिन यहाँ पे 3 हाइड्रेट मॉलिक्यूल्स है, सो इट्स हाइड्रेट ऑफ ऑक्साइड्स ऑफ आयन. तीसरी वाली है मैग्नेटाइट यानी Fe3O4 है, सो इट्स अ मैग्नेटिक ऑक्साइड्स ऑफ आयन. एंड सिडेराइट या हम स्फेटिक और भी बोलेंगे FeCO3 एंड आयन पायराइट्स यानी फुल्स गोल्ड, इसको FeS2. तो ये जो 5 है यहाँ पे हमें दी गई है, उसमें से देखिए पहली, दूसरी और तीसरी वाली है वो तो डायरेक्टली ऑक्साइड फॉर्म में ही है, लेकिन फोर्थ वाली है वो कार्बोनेट में है, तो मुझे उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड निकाल के उसको ले आना पड़ेगा. तो कैल्सिनेशन से मैं इसको कवर कर सकता हूं, और आयरन पायरेट्स में भी FeS2 को मैं FeO में कन्वर्ट कर दूंगा. समझ में आ रहा है? FeS2 है यानी मैं उसका ऑक्सीडेशन कराऊंगा, जो रिवर बैटरी है मेरी जो फर्नेस थी, तो कैल्सिनेशन की वजह से तो वो भी उसका रिस्पेक्टिव ऑक्साइड में चला जाएगा. तो मेरा जो यहाँ पे पूरा गोल है, जो ऑक्साइड में है उसके लिए हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो कार्बोनेट में है तो उसका मैं कैल्सिनेशन कराऊंगा, फिर इसका भी मैं कैल्सिनेशन कराऊंगा. तो देखिए, आयन इज यूजुअली एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द ऑक्साइड और हीमेटाइट. ज्यादा से ज्यादा हम हीमेटाइट में से ही उसको निकालते हैं. सो इट इन्वॉल्व्स द फॉलोइंग स्टेप. फर्स्ट वन कॉन्सेंट्रेशन, जो हमने आगे बढ़ा हुआ था. द ओर इज क्रस्ड इन जो क्रशर्स एंड द क्रस्ड ओर इज कॉन्सेंट्रेटेड बाय ग्रेविटी सेपरेशन प्रोसेस in which the crushed ore is washed in a stream of water when lighter sand and clay particles are washed away while the heavier ore particles settle down. In case of sulfide ore यानी iron pyrites, concentration is carried out by froth flotation process. इसके लिए मुझे froth flotation की जरूरत पड़ेगी, बाकी के किसी के लिए मुझे जरूरत नहीं है. अभी मेरे पास क्या हो गया है, concentrated ore मुझे मिल गया है. So now the concentrated ore is then calcinated, means heated strongly in the presence of a limited supply of air, not full supply of air, limited supply of air in a river battery furnace. हमें मालूम है कि during calcination some changes are occur, moisture वहां से निकल जाता है. जैसे मेरे पास impurities of sulfur होती है तो which is converted into sulfur dioxide, फॉस्फोरस का फॉस्फोरस पेंटॉक्साइड में चला जाता है, आर्सेनिक है तो वो आर्सेनिक ऑक्साइड में चली जाएगी. तो ये कैल्सिनेशंस में मुझे ये भी सभी उसके ऑक्साइड्स में चले गए हैं.
फिर जो मुझे यहाँ पे फेरस ऑक्साइड मुझे यहाँ पे है मेरे पास FeO, सो विच इज फर्दर ऑक्सीडाइज इनटू Fe2O3 बिकॉज Fe+3 इज द स्टेबल एंड द हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ आयन। और एक क्या हुआ कि द और बिकम पोरस, यानी वो इसमें से पोरस होने की वजह से इट्स मोर सूटेबल फॉर द रिडक्शंस टू द मेटालिक स्टेट, यानी उसमें पूरा जो इसका मटेरियल है मैं उसका रिडक्शंस कर सकूंगा। अभी मैंने ये तो बात हुई है, लेकिन मैंने अभी बोला था ना कार्बोनेट वाली मेरे पास और है, जैसे सीडेराइट है, तो वो भी कैल्सिनेशंस में उसका फेरिक ऑक्साइड में मींस फेरस ऑक्साइड एंड देन फेरस ऑक्साइड इज कन्वर्टेड इनटू फेरिक ऑक्साइड। और मेरे पास जो आयन सल्फाइड है आयन पायराइड से, तो वो भी उसका ऑक्सीडेशन करके Fe2O3 और O2 में चला गया है। लेकिन ये जो अब हम आप केस देख रहे हैं FeS2 वाला, वो मैं रोस्टिंग से करूंगा क्योंकि मुझे ज्यादा सप्लाई यहाँ पे देनी पड़ेगी, राइट। यहाँ पे लिमिटेड सप्लाई है, यहाँ पे ज्यादा सप्लाई होने की वजह से ये जो पोर्शन है वो मैं रोस्टिंग से करूंगा। आगे वाला जो मैंने दिखाया हुआ है वो है कैल्सिनेशन का। उसके बाद में हम तीसरे जो पॉइंट है उसमें हम चले जाएंगे और वो है स्मेल्टिंग। अभी स्मेल्टिंग का मतलब क्या होता है, द कैल्सिनेड और जो भी मेरे पास कैल्सिनेड और है विच इज रिड्यूस्ड विथ कार्बन, यानी मैं उसको कार्बन के साथ रिडक्शंस करूंगा और स्मेल्टेड इन अ ब्लास्ट फर्नेस। अभी मुझे रिडक्शंस करना है। रिडक्शन के लिए मैंने जो अभी एलिंगम डायग्राम बताया था, आइदर वी हैव टू यूज अ कार्बन और कार्बन मोनोऑक्साइड, कई बार कार्बन डाइऑक्साइड भी हम ले सकते हैं, लेकिन ज्यादातर कार्बन और कार्बन मोनोऑक्साइड और एनी अदर मेटल या उसके ऑक्साइड से मैं उसका रिडक्शंस कर पाऊंगा। सो इट इज उसके लिए जो मुझे स्मेल्टिंग प्रोसेस के लिए मुझे इट्स अ टॉल सिलिंड्रिकल फर्नेस। मैं अभी आपको उसकी फिगर भी दिखाऊंगा, आपकी टेक्स्ट बुक में भी जो फिगर है वो आपको यहाँ पे बताई हुई है, वो भी मैं अभी आपको दिखाऊंगा। सो इट इज अ टॉल सिलिंड्रिकल फर्नेस मेड अप ऑफ अ स्टील, स्टील की पूरी बनी हुई है, लाइन इनसाइड विथ अ फायर ब्रिक्स। इट इज स्लाइटली नैरो एट द टॉप एंड अगेन एट द बॉटम, यानी बीच में वो ज्यादा जो ब्रॉड है और ऊपर और नीचे से यानी टॉप और बॉटम में से वो थोड़ा नैरो है। दिस फैसिलिटेट्स द प्रॉपर फ्लो ऑफ मटेरियल। The furnace is provided with a double cup and cone arrangement which helps to feed the charge from the top without letting any gas from inside to escape. Near the top, यानी टॉप के पास से furnace is also provided with an outlet for waste gases. At the base the furnace is provided, जैसे जो बेस होता है वहां पे small pipes होती है cold as a tears through which a blast or hot air is admitted. टैपिंग होल है वो जो मोल्टन आयन को विड्रॉ करने के लिए है, और एक स्लैग होल है वो स्लैग को निकालने के लिए। स्लैग हमें मालूम है और फ्लक्स डाल के हम निकालेंगे। अभी हम क्या शुरू करेंगे, तो कि उसमें जो मुझे मटेरियल है मेरा, उसमें कैल्सिनेटेड और जो मैंने अभी यहाँ पे मुझे ली हुई है, तो वो कैल्सिनेटेड और के 8 पार्ट्स में लूंगा, कोक के 4 पार्ट्स लूंगा और लाइमस्टोन का मैं 1 पार्ट लूंगा, यानी 8 4 1 8 है मेरा। फिर से मैं दिखा रहा हूं, मेरा फेरिक ऑक्साइड है, 4 पार्ट्स मेरा कोक का है और 1 पार्ट्स लाइमस्टोन का है। इज इंट्रोड्यूस इनटू द फर्नेस फ्रॉम द टॉप थ्रू कप एंड कॉन अरेंजमेंट। सो एट द सेम टाइम अ ब्लास्ट ऑफ हॉट एयर प्री हीटेड। देखिए ये जो पूरा मैंने बहुत पूरा डिटेल से ये जो यहाँ पे फर्नेस बताया हुआ है, यहां से नेरो है, फिर से नेरो यहाँ पे है, बीच में ब्रॉड वाला पोर्शन है, यहां से हम डबल कप एंड कॉन अरेंजमेंट मैंने यहाँ पे दी हुई है। यहाँ पे मुझे फर्नेस चार्ज है, इसमें मुझे और लेनी है, फिर कोक और लाइमस्टोन का जो मिक्सचर है वो मैंने यहाँ पे लिया हुआ है। अब देखेंगे, फिर से मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि जो मेरा जो और वाला जो पोर्शन है, फिर से यहाँ दूसरा कप है, यानी वो फर्स्ट में से निकल के सेकंड में आ जाएगा, राइट। और यहाँ पे नीचे आप देखेंगे, यहाँ पे तो जो यहाँ ट्यूब्स होते हैं, तो वो जो हॉट एयर ब्लास्ट के लिए रखे हुए हैं, एक है वो स्लैग के निकालने के लिए है और एक मोल्टन आयन को निकालने के लिए उसका आउटलेट है, वो यहाँ पे मुझे दिया हुआ है। समझ में आ गया? जैसे मैंने जो सॉलिड वेस्ट मुझे यहाँ से निकलेगा वो है ये, और ये जो मोल्टन पीग आयन का है तो वो यहाँ से निकलेगा। अभी देखिए उसमें जो हॉट एयर ब्लास्ट होती है वो मैं यहां से जो गर्म हवा उसको निकालूंगा, वो 1000 केल्विन विच इज ब्लोन इनटू द फर्नेस थ्रू
चुआयर्स, राइट। यहाँ से मैं उसका हॉट एयर ब्लोअर मैं उसको यहाँ से निकालूंगा, और यहाँ ऊपर से जो द एडेड कोक, यहाँ से मैंने कोक डाला हुआ है, तो कोक है ना, उसका दो फंक्शन होता है। एक तो वो फ्यूल की तरह भी काम करता है, और दूसरा हमें मालूम है रिड्यूसिंग एजेंट है, जो हमारा मेन रिड्यूसिंग एजेंट है कोक। और तीसरा वाला है लाइमस्टोन, जो मैंने बोला था ना बेसिक फ्लक्स है, यानी मेरा जो एसिडिक मेरे पास जो इंप्यूरिटीज है उसको निकालने के लिए बेसिक फ्लक्स रखा हुआ है। मैं फिर से आपको फिगर आप अच्छी तरह से देख लीजिए, ताकि आपको पता चल सके कि क्यों हमें कौन से जोन में से किस तरह से मुझे यहाँ पे निकालना है। ये फिर से ये जो आप देख रहे हैं वो फर्नेस चार्ज है, जिसमें मैंने और कोक और लाइमस्टोन है। और तो ठीक है, कोक का दो फंक्शन यहाँ पे है, फ्यूल की तरह भी वर्क कर रहा है, और लाइमस्टोन फ्लक्स है वो बेसिक फ्लक्स की तरह वर्क कर रहा है। डबल कप एंड कॉन अरेंजमेंट है, यहाँ से जैसे थोड़ा निकलेगा तो यहाँ से इतना पोर्शन यहाँ से फिर से भर जाएगा। यहाँ हॉट एयर ब्लास्ट से या जो 1000 केल्विन की हॉट एयर यहाँ से बिल्कुल चल रही है, और नीचे जो आउटलेट है उसमें से एक में स्लेग और एक मोल्टन पिग आयन के लिए निकाला हुआ है। और जैसे मैंने यहाँ पे कोक का जो पोर्शन है वो रिड्यूसिंग एजेंट के लिए काम कर रहा है। अभी जैसे यहाँ से नीचे से जाके हम ऊपर जाएंगे, तो ये जो हमारी हॉट एयर थी 1000 केल्विन के बीच में से यहाँ से ली गई थी, तो वो ऊपर जाके और नियर अबाउट फर्नेस का जो टेम्परेचर होता है टॉप ऑफ द यहाँ पे वो 523 केल्विन होता है, 523 केल्विन। मैं पूरा आपको यहाँ पे फिगर में ही दिखाना चाहता हूं। और जो नीचे होता है वहां पे 2170 केल्विन के आसपास यहाँ पे टेम्परेचर मुझे मिल रहा है। समझ में आ रहा है? अभी जो रिडक्शन प्रोसेस की जो थियरी है वो क्या है, चलो हम पहले देखते हैं कि थर्मोडायनेमिकली वी नो दैट हेल्प अस दैट अंडरस्टैंड दैट हाउ कोक रिड्यूस आयन ऑक्साइड टू आयन, राइट। मुझे क्या करना पड़ेगा कि इनफैक्ट आयन ऑक्साइड इज रिड्यूस टू आयन मेनली बाय कार्बन मोनोऑक्साइड, लेकिन वो कार्बन से नहीं होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड से अच्छी तरह से वो हो सकता है थ्रू, लेकिन फिर भी मेनली बाय CO थ्रू परहैप्स सम रिडक्शंस बाय कार्बन आल्सो टेक प्लेस। यानी आप देखेंगे ना तो उसमें क्या होगा, आप देखिए यहाँ पे जो रिडक्शंस प्रोसेस में मैंने जो बात की हुई है, जो FeO है मेरा सॉलिड, वो कार्बन के साथ रिएक्ट करके वो Fe में चला गया, या ये सॉलिड लिक्विड के बीच का है यानी मोल्टन फॉर्मेशन में है, और कार्बन मोनोऑक्साइड एज अ गैस निकल रहा है। समझ में आ रहा है? फिर से मैं इसका जो रेडॉक्स रिएक्शंस हम देखेंगे, ये जो आपको दिखा रहा हूं, उसका जो रेडॉक्स रिएक्शंस किस तरह से होगा कि जो FeO है, FeO में Fe और 1/2 O2 निकल जाएगा, और कार्बन है वो 1/2 O2 लेके कार्बन मोनोऑक्साइड में चला जा रहा है। तो उसके जो रिडक्शंस और ऑक्सीडेशंस की जो फ्री एनर्जी भी मुझे मिलेगी। और मैंने तभी भी बोला था कि जब भी हम ये प्रोसेस करेंगे, ये जो प्रोसेस पूरा चल रहा है, उसका जो डेल्टा GF है वो नेगेटिव ही होता है, वो हमें नेगेटिव ही मिलता है। अभी मुझे ऐसा करना पड़ेगा कि उसका जो टेम्परेचर है, क्योंकि यहाँ पे 3 लोग काम कर रहे हैं। देखिए पहला क्या काम हो रहा है कि मेरा जो FeO वाला पोर्शन है ये काम कर रहा है, दूसरा वो कार्बन मोनोऑक्साइड बन रहा है, और तीसरा कार्बन डाइऑक्साइड भी हो रहा है, क्योंकि कार्बन डायरेक्टली ऑक्सीजन के साथ CO बना रहा है, और कार्बन जो CO है फिर से कार्बन डाइऑक्साइड में चला जा रहा है, राइट। तो एलिंगम डायग्राम में हमने देखा था कि जो कार्बन टू कार्बन मोनोऑक्साइड है वो ग्राफ का स्लोप है वो नेगेटिव होता है, और बाकी के दो होते हैं वो पॉजिटिव होते हैं। और फिर एक जैसे वो एक टेम्परेचर जिसके हम बोलेंगे ट्रांजिशंस टेम्परेचर या क्रॉस हम टेम्परेचर बोलेंगे, तो यहाँ पे जो क्रॉस टेम्परेचर है ना वो नियर अबाउट 1073 केल्विन है। कौन सा है? 1073 केल्विन के आसपास यहाँ पे मुझे मिल रहा है। तो ऐसा होगा ना कि अभी जो हम उसका जो एप्रोप्रिएट टेम्परेचर दिखाएंगे एलिंगम डायग्राम में, तो 1073 से ऊपर में चला जाता हूं, जैसे मैं नीचे रहता हूं मीन्स तो मेरे लिए क्या अच्छा है, नीचे के लिए मुझे कार्बन अच्छा है, लेकिन जैसे मैं ऊपर 1073 से ऊपर चला जा रहा हूं तो मेरे लिए कौन सा अच्छा है, 1073 से आगे वाले पोर्शंस में जाता हूं, right? So at approximate 1073 Kelvin or above, the carbon CO line is much below that the FeO line के बीच में है। तो इसका मतलब ये हुआ कि डेल्टा G Fe और FeO इज ग्रेटर देन डेल्टा G CO और CO, यानी डेल्टा G मुझे नेगेटिव ही मिलता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि 1073 केल्विन
या उसके आगे कोक होगा, कोक वो रिड्यूस करेगा FeO को Fe में, एंड इटसेल्फ विल ऑक्सीडाइज टू कार्बन मोनोऑक्साइड। लेकिन इन कॉन्ट्रास्ट जैसे 1073 से हम नीचे चले जा रहे हैं तो CO2 लाइन्स में नीचे होती है बिलो Fe2 FeO लाइन, तो CO रिड्यूस टू द ऑक्साइड। पहले क्या था, कोक चल रहा, अपर टेम्परेचर में कोक का प्रोसेस चल रहा है, मैंने लास्ट लेक्चर में भी बोला था, और CO होता है वो नीचे जो 1073 से नीचे वाले टेम्परेचर में काम करेगा। सो दस इन द ब्लास्ट फर्नेस रिडक्शन ऑफ आयरन ऑक्साइड टेक प्लेस एट डिफरेंट टेम्परेचर। मैंने अभी आपको बोला था कि मैंने एयर पास की हुई है इन फ्यू सेकंड्स। द इंडिविजुअल रिएक्शंस में क्या होगा, तो कि पहले तो जोन ऑफ कंबंसन होगा, यहां से जो कोक निकलेगा कार्बन वो O2 में कन्वर्ट होकर CO2 में चला जाएगा, उसका डेल्टा H है वो नेगेटिव है। मैंने अभी बोला था कि कोई भी कंबंसन रिएक्शन ज्यादातर एक्सोथर्मिक ही होते हैं, यानी लॉट्स ऑफ हीट इज प्रोड्यूस एंड द टेम्परेचर यहाँ पे जो हो रहा है वो है 2170, यहाँ पे देखेंगे तो 2170 केल्विन है। और अभी क्या होगा, दिस लोअर पार्ट ऑफ फर्नेस एंड टेम्परेचर हियर इज बिटवीन, जैसे यहाँ पे 1423 और 1673 के बीच में है, तो CO2 फॉर्म्ड हो रहा है नियर हॉट एयर ब्लास्ट में, तो वो CO2 है ना वो ऊपर चला जा रहा है और CO2 फर्दर कार्बन के साथ जुड़ के कार्बन मोनोऑक्साइड बना रहा है। लेकिन हमें मालूम है कि ये जो रिएक्शन है कार्बन डाइऑक्साइड टू कार्बन मोनोऑक्साइड वो एंडोथर्मिक रिएक्शन है, यानी टेम्परेचर फॉल हो जाएगा 1423 के आसपास जो राइट। फिर से हम जोन फिर क्या होगा कि जो मिडिल पार्ट ऑफ फर्नेस है वहां पे नियर अबाउट 1123 केल्विन यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है। क्लियर हो रहा है आपको? तो ये 1123 में क्या होगा कि टेम्परेचर हियर इज 1123 इन दिस रीजन। लाइमस्टोन जो मेरे पास है विच इज लाइमस्टोन जो मैंने फ्लक्स के लिए लिया हुआ है विच इज कन्वर्टेड इनटू CaO एंड CO2, तो वो भी क्या है, तो कि वो भी एंडोथर्मिक रिएक्शन है, यानी हीट कम कर देगा। और फिर वो जो हमारी जो और थी उसमें जो सिलिका की जो इंप्यूरिटीज थी, राइट, सो CaO एक्ट एज ए फ्लक्स एंड कंबाइंस विद सिलिका विच इज प्रेजेंट एज इम्प्यूरिटी, तो उसको कैल्शियम सिलिकेट में कन्वर्ट कर देगा, उसको हम स्लेग बोलेंगे। राइट, अभी तीसरा वाला जो पोर्शन है, पहला वाला पोर्शन क्या था, जोन ऑफ कंबंसन, यहां से कंबंसन शुरू हुआ, फिर क्या हुआ, हीट का थोड़ा एब्जॉर्प्शन हुआ, ये जो प्रोसेस एंडोथर्मिक था। फिर क्या था, स्लैग फॉर्मेशन का जो प्रोसेस है वो नियर अबाउट 1123 के आसपास हो रहा है। समझ में आ रहा है? फिर मैं क्या कर रहा हूं, अभी जोन ऑफ रिडक्शन की बात कर रहे हैं, तो यहां पे आप देखेंगे दिस इज द अपर पार्ट ऑफ द फर्नेस। यहां पे जो टेम्परेचर है वो नियर अबाउट 500 टू 900 केल्विन के आसपास है। तो जैसे मैंने यहाँ पे और डाली Fe2O3 वाली, यहाँ तो कार्बन मोनोऑक्साइड ही है, तो उसने वो Fe2O3 को किस में कन्वर्ट कर दिया, देखिए Fe3O4 में, और कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन हो रहा है। फिर वो Fe3O4 फिर से Fe में चला गया है, कार्बन डाइऑक्साइड निकला है, और Fe2O3 भी FeO में चला गया है, सभी में कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो रहा है। ये नियर अबाउट आप देखेंगे ये जो पोर्शन है वो 573 673 के आसपास चल रहा है। यहाँ पे जो आप देखेंगे वो नियर अबाउट 773 टू 873 के आसपास है। और तीसरा वाला आप Fe2O3 इंटू CO का देख रहे हैं वो 773 873 के पास, ये दोनों रिएक्शंस यहाँ पे हो पा रहे हैं। सो इन द मिडिल पार्ट ऑफ द फर्नेस द टेम्परेचर यहाँ पे होगा 900 टू 1500 केल्विन के बीच में। अभी जो मैंने अभी आपको बात की थी 1073 केल्विन वाली, क्योंकि ये जो मेरा ट्रांजिशन टेम्परेचर है और जैसे मैंने क्रॉस होती है लाइन वहां पे, तो FeO का जो पार्ट होता है अपर पार्ट फर्नेस, राइट, तो वो कार्बन से होगा यानी कोक से, लेकिन 1073 से ज्यादा होगा तो कार्बन से होगा और कम होगा तो वो कार्बन मोनोऑक्साइड से होगा। तो अभी क्या हुआ कि जो मेरा FeO था वो कार्बन के साथ अभी जुड़ेगा और ग्रेटर देन 1073 के साथ जुड़ के वो Fe सॉलिड और लिक्विड में उसको कन्वर्ट कर देगा। क्लियर हो रहा है आपको? यहाँ FeO है वो कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है, क्योंकि यहाँ पे टेम्परेचर ज्यादा हो रहा है। ज्यादा टेम्परेचर में क्या एलिंगम डायग्राम दिखा रहा है, अभी कोक अपना वर्क फंक्शन शुरू करेगा तो वहां से Fe को लिक्विड फॉर्म में और कार्बन मोनोऑक्साइड को यहाँ से निकाल देगा। नाउ द फर्दर रिडक्शन of iron ores left around at 873 Kelvin, right? तो Fe2O3 को Fe और CO में यहाँ पे कन्वर्ट हो रहा है। FeO भी इस तरह से हो रहा है और Fe2O3 इंटू C भी मैंने दिखाया हुआ है यहाँ पे। तो दोनों तरीके से हम यहाँ पे जो रिएक्शन है वो अपना देख रहे हैं।
नेक्स्ट एक होता है जोन ऑफ फ्यूजन, हम इसको फ्यूजन जोन भी बोलेंगे। फ्यूजन जोन में क्या होता है कि दिस इज द लोअर पार्ट ऑफ द फर्नेस, वहां पे टेम्परेचर जो होता है लोअर पार्ट में वो नियर अबाउट 14232 टू 1673 केल्विन के आसपास होता है। सो इन दिस रीजन स्पोंजी आयन मेटल्स जो भी होती है वो वहां पे जनरेट होती है, और जैसे कार्बन की या सल्फर की या फॉस्फोरस की या सिलिकॉन मैग्नीशियम मैंगनीज ऐसी जो भी मेरे पास एक्सेट्रा जो भी होता है वो डिसॉल्व हो जाता है, क्योंकि सल्फर है वो सल्फेट्स में, फॉस्फोरस फॉस्फेट में, सिलिकॉन सिलिकेट्स में जो और में रिडक्शंस कार्बन के साथ कर देती है। और कैल्शियम सिलिकेट होती है वो तो मैंने आपको बोला था कि विच इज ऑल्सो मेल्ट्स इन दिस रीजन एंड बोथ द मोल्टन स्लैग, यहाँ पे जो है स्लैग राइट एंड द मोल्टन आयन जस्ट वो ट्रिकल डाउन इनटू द हर्थ, यहाँ पे जो हर्थ होता है वो वहां पे चला जाता है। और वहां पे क्या होगा, मोल्टन कैल्शियम सिलिकेट है ना वो लाइटर होने की वजह से वो अपर लेयर में होता है, और जो मोल्टन आयन बीइंग हेवियर वो लोअर लेयर में, यानी यहाँ लोअर लेयर में क्या है मोल्टन आयन है, और यहाँ पे क्या है आप देख रहे हैं यहाँ पे कैल्शियम सिलिकेट का जो स्लेग है वो यहाँ पे रखा हुआ है। सो दिस टू लिक्विड्स आर प्रेफरेंशियली टैप्ड ऑफ, यहां से बारी बारी से हम निकालेंगे उसको राइट। सो द आयन दस ऑब्टेन फ्रॉम द फर्नेस कंटेन, यहां से जो निकलेगा आयन तो उसमें नियर अबाउट 4% कार्बन होता ही है, क्योंकि कार्बन हमने डाला था कोक वाला वो भी इसमें हो सकता है, और थोड़ी इंप्यूरिटीज भी होगी जैसे सल्फर फॉस्फोरस सिलिकॉन मैंगनीज की, लेकिन वो स्मॉलर अमाउंट में है। वो आयन को हम बोलेंगे पिग आयन राइट। तो उसको हम कास्ट कर सकते हैं डिफरेंट डिफरेंट शेप में, हम उसको कास्ट कर सकते हैं, और कास्ट आयन इज डिफरेंट फ्रॉम द पिग आयन। दूसरा एक होता है पिग आयन एंड इज मेड बाय मेल्टिंग आयन विथ अ स्क्रैप। तो थोड़ा मैंने आपको फिगर से ही ये बात आपको समझाई हुई है, आपको फिगर में भी दिखा होगा कि ये फर्नेस गैसेस है कंटेनिंग 25% यूज टू हीट इनकमिंग एयर ब्लास्ट। ये जो फायर ब्रिक्स की बताई गई है स्टील शेल, यहाँ पे जो पूरा बाहर का बॉडी है स्टील का है, अंदर फायर ब्रिक्स है, वो रिडक्शन बिगिंस किस तरह से होता है, यहाँ पे रिडक्शंस कंप्लीटेड किस तरह से होता है, कोक का क्या फंक्शन है, बर्न्स टू फॉर्म अ CO2 विच ऑन पासिंग ऑफ द फर्नेस थ्रू मोर हॉट कोक, जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड में फिर कार्बन मोनोऑक्साइड, तो इस तरह से यहाँ पे क्या हो रहा है। यहाँ पे आप देखेंगे और है यहाँ पे तो वो अपना मॉइस्चर लूज कर देगा और पोरस हो जाएगा। यहाँ पे बीच वाला जो पोर्शन है वहां पे स्लैग फॉर्मेशन होगा CaCO3 का और CaSiO3 बना देगा। यहाँ पे मेल्टिंग जो स्लैग और आयन दोनों मेल्ट हो जाएंगे और फ्लूइड स्लैग एंड लिक्विड Fe विच इज ट्रिकल्स डाउन इनटू दिस अर्थ राइट। तो ये जो पूरा आपको फिगर है वो यहाँ पे आपको पूरा समझ में आ गया होगा। तो ये जो ज्यादा से ज्यादा हम उसको इस फिगर से ही हम उसको यहाँ पे आपको समझा सकेंगे कि कौन सा प्रोसेस किस तरह से पिग आयन होता है या कास्ट आयन होता है, या मैं अभी आपको थोड़ा उसके बारे में भी मैं आपको बात करूंगा, लेकिन आपको ये देखना होगा। फिर से मैं आपको उसका डिस्क्रिप्शन पोर्शन में ले जा रहा हूं जो मैंने अभी समझाया था। फिर से थियरी ऑफ रिडक्शन प्रोसेस किस तरह से चल रही है। थर्मोडायनेमिक्स हेल्प अस टू अंडरस्टैंड how coke reduce iron oxide to iron. In fact, iron oxide is reduced to iron mainly by carbon monoxide. जैसे क्योंकि लोअर टेम्परेचर में कार्बन मोनोऑक्साइड चल रहा है थ्रू परहैप्स सम रिडक्शंस बाय कार्बन, लेकिन ये कोक का अपर टेम्परेचर में चलेगा। तो ये जो थोड़ा रिएक्शंस FeO का यहाँ पे है कार्बन के साथ रिएक्शंस करके Fe सॉलिड लिक्विड यानी मोल्टन पोजीशन में और कार्बन मोनोऑक्साइड जो रिडक्शंस होता है ये रेडॉक्स रिएक्शन है विच इज डिवाइडेड इनटू फॉलोइंग 2 हाफ रिएक्शन। जैसे उसको हम हाफ रिडक्शन हाफ या ऑक्सीडेशन हाफ भी बोलेंगे। तो इसमें FeO का रिडक्शन हुआ है और कार्बन का ऑक्सीडेशन हुआ है, तो इसका भी डेल्टा G होगा FeO to Fe और इसका भी डेल्टा G होगा C2CO। तो उसका जो नेट जो हमारा होता है उसको हम डेल्टा GF स्टैंडर्ड बोलेंगे पूरा रिएक्शंस का। सो जो होता है वो वही होगा ना। ये रिएक्शंस को इस तरह से क्यों आएगा, स्पॉन्टेनियस होगा तो ही आएगा। तो स्पॉन्टेनियस की शर्त क्या है, हमारे पास डेल्टा G नेगेटिव होना चाहिए राइट। तो डेल्टा G तो नेगेटिव ही है। देखिए लेट अस नाउ फाइंड आउट द approximate temperature which these reductions occur। ये जो ग्राफ है ना वो आपको देखना पड़ेगा। देखिए ये Fe प्लस O2 FeO का जो ग्राफ है आप देखेंगे जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है ये ग्राफ अपर पोजीशन में जा रहा है, यानी उसका थोड़ा डेल्टा G कम हो रहा है। इतना कम नहीं हो रहा है फिर भी कम हो रहा है
राइट। एक जो दूसरा ग्राफ है वो आप देखेंगे कि यहाँ पे कार्बन मोनोऑक्साइड टू कार्बन डाइऑक्साइड है और ये कार्बन टू कार्बन मोनोऑक्साइड का ग्राफ है। और ये जो टेम्परेचर है, जैसे पे इसको हम क्रॉस ओवर टेम्परेचर बोलेंगे, वो नियर अबाउट 1073 पे आप देखेंगे तो ये जो मेरा यहाँ पे टेम्परेचर आया 1073, जैसे मैं उसके अपर टेम्परेचर में जा रहा हूं, अपर यानी ये वाला पोर्शन में, तो इसमें अपर पोर्शन में मुझे डेल्टा जी नेगेटिव कहां पे मिलेगा, यहां पे मिलेगा, क्योंकि ये तो पॉजिटिव है, तो वहां पे कोक काम करेगा। लेकिन जैसे मैं रिएक्शंस में उसके नीचे चला जा रहा हूं, तो यहाँ के ये पोर्शंस की बात हो रही है, तो वहां तो कार्बन मोनोऑक्साइड ही अपना वर्क कर रहा है। समझ में आ रहा है? सो यहाँ पे ये लिखा हुआ है कि जैसे हम एलिंग्राम डायग्राम देखते हैं, फिगर नंबर यहाँ पे जो मैंने दिखाया हुआ है, so approximate 1073 Kelvin or above the carbon CO line is much below the FeFeO line, यानी ये लाइन इसके कम है, यानी इसका मतलब ये हुआ कि जो FeFeO वाला डेल्टा जी है उससे कम वैल्यू किसकी है, डेल्टा जी CCO की है, यानी उसका डेल्टा जी नेगेटिव हो गया है। समझ में आ रहा है? और दूसरे वर्ड में हम यहाँ पे इस तरह से भी दिखा सकते हैं, इन अदर वर्ड्स एट 1073 Kelvin above the coke will reduce FeO2, Fe itself will be oxidized to CO. So in contrast, a temperature below, जैसे मैंने अभी बोला ना 1073 के नीचे है तो CO वाली लाइन नीचे है FeO लाइन से, so below 1073 CO रिड्यूस करेगा ऑक्साइड्स ऑफ आयन को, Fe2O3, Fe3O4 को, राइट। So thus in the blast furnace, reduction of iron oxide take place at different temperatures. Since the air pass through a few seconds, the individual reactions do not reach equilibrium. अभी कौन सा है, जैसे मैंने अभी आपको पहले बोला था जोन ऑफ कंबंशन के नियर जो मेरे पास स्टीवर्ड्स थे, वहां पे जो मैंने कोक बंद किया हुआ है, यानी ये डेल्टा एच नेगेटिव है, यानी वहां से एनर्जी एक्सोथर्मिक रिएक्शंस होने की वजह से लॉट्स ऑफ हीट प्रोड्यूस हो रही है और टेम्परेचर कहां पे चला गया है, 2170 केल्विन के पास। zone of heat of absorption, this is the lower part of the furnace and temperature here is between 1423 to 1673। क्यों? क्योंकि ये जो CO2 है ना वो कार्बन के साथ मिलकर कार्बन मोनोऑक्साइड में चला गया है, लेकिन ये एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक होने की वजह से उसने टेम्परेचर ग्रेजुअली फॉल करके 1423 में डाल दिया हुआ है। जोन ऑफ स्लेग में क्या हुआ कि इट्स अ मिडिल पार्ट ऑफ द फर्नेस होता है, वहां पे टेम्परेचर नियर अबाउट 1123 केल्विन के आसपास होता है। तो वहां पे लाइमस्टोन था, तो लाइमस्टोन का वो जो डिकम्पोजिशन होके CO2 में गया, और ये जो CO है वो बेसिक होने की वजह से वो जो सिलिका होती है इसमें इंप्यूरिटीज वो एसिडिक होती है, तो वो कैल्शियम सिलिकेट में चला जा रहा है, राइट। हमारा जो स्लेग है वो यहाँ पे हमें इस तरह से मिल रहा है। फिर जोन ऑफ रिडक्शन में क्या होगा, सो जोन ऑफ रिडक्शन में हम कुछ इस तरह से बात करेंगे क्योंकि दिस इज द अपर पार्ट, यहाँ पे रिडक्शन प्रोसेस शुरू हो रहा है। द टेम्परेचर हियर इज नियर अबाउट 500 टू 900, यानी जो मैंने अभी बोला था 1073 से वो क्या है, नीचे वाला है टेम्परेचर है, तो कौन करेगा, कार्बन मोनोऑक्साइड ही करेगा। तो आपका Fe2O3 को वो Fe3O4 में डालेगा, Fe3O4 को Fe में डालेगा, और अगर Fe2O3 होता है और ये टेम्परेचर है तो भी वो FeO और CO2 में चला जाएगा। यानी ये हुआ कि ये दोनों है वो वहां से Fe में चले गए हैं, लेकिन जो Fe2O3 वाला पोर्शन होगा अगर वो भी CO के साथ मिलके नियर अबाउट FeO में भी जा सकता है। सो इन द मिडल पार्ट ऑफ द फर्नेस टेम्परेचर यहाँ पे 900 और 1500 के बीच में होने की वजह से, जैसे 1073 होता है तो वो कार्बन मोनोऑक्साइड होता है, तो वो यहां से कार्बन डाइऑक्साइड निकाल के FeO, और जो FeO होता है वो नीचे कार्बन, क्योंकि कोक का टेम्परेचर ज्यादा होने की वजह से, मीन्स वो ज्यादा टेम्परेचर पे डेल्टा जी नेगेटिव होने की वजह से वो इस तरह से निकाल देगा। सो फर्दर डायरेक्ट रिडक्शंस ऑफ ओर, जैसे मैंने अभी आपको बोला Fe2O3 होता है, या कोई भी डायरेक्ट नीचे भी चले जाने की वजह से ग्रेटर देन 1073 की वजह से वो Fe में चला जाएगा। अभी फ्यूजन में क्या होता है, दिस इज द लोअर पार्ट ऑफ द फर्नेस होता है, तो टेम्परेचर यहाँ पे नियर अबाउट 1423 टू 1673 के। सो इन दिस रीजन अ स्पॉन्जी आयन मेल्ट्स एंड डिसॉल्व सम कार्बन, सल्फर, फॉस्फोरस, सिलिकॉन, मैंगनीज एक्सेट्रा। जो कैल्शियम सिलिकेट स्लैग है वो भी वहां पे मेल्ट हो रहा है। बोथ द मोल्टन स्लैग एंड मोल्टन आयन जो भी दोनों है विच इज ट्रिकल डाउन इनटू द अर्थ वेयर दे फॉर्म 2 सेपरेट लेयर्स, क्योंकि कैल्शियम सिलिकेट बीइंग लाइटर फॉर्म्स ऑफ द अपर लेयर और मोल्टन आयन हेवी होने की वजह से नीचे आ जाता है,
These two liquids are periodically tapped off and the iron thus obtained from the furnace contain about 4% carbon and many impurities like this in a smaller amount. उसको हम pig iron बोलेंगे and which is cast into various type of shapes. और जो cast iron होता है which is different from pig iron is made up by melting pig iron with आयन एंड कोक, जिससे जो आयन के स्क्रैप होते हैं कोक है उसके हॉट एयर ब्लास्ट में करके इट इज स्लाइटली लोअर कार्बन कंटेंट, यहाँ में वो 4% वाला था वो 3% में ला सकते हैं और विच इज एक्सट्रीमली हार्ड एंड ब्रिटल इन नेचर। तो ये जो मैंने पिग आयन के बारे में बात की, कास्ट आयन के बारे में बात की, अभी थोड़ा रोट आयन के बारे में भी मैं आपके साथ बात करना चाहता हूँ, शेयर करना चाहता हूँ किस तरह से हो सकता है, लेकिन मैं क्यों थोड़ा धीरे धीरे और पूरा डिटेलिंग से हमें समझने के लिए मैं थोड़ा इस तरह से आपको यहाँ पे ले जा रहा हूँ। तो अगले लेक्चर में हम रोट आयन के साथ मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच।